Hello friends, most welcome to my channel that is Anti-UGC Net Paper 2 Education. Up till now we have studied about Unit 1 A, B, C and D section. In the D section we had completed so far Education and Culture, Contribution of Thinkers. In that Swami Vivekananda's philosophy, Rabindranath Tagore's philosophy, and yesterday we had studied about Mahatma Gandhi's philosophy. Today we are going to study about Mahatma Gandhi's philosophy and Aurobindo's philosophy. Yesterday we did Mahatma Gandhi's philosophy, but some of the important portion got left over. So today we are going to finish that, and then after we will be heading towards Aurobindo's philosophy. So let's just start today's session. As you can see, yesterday I had discussed about important books that were written by Mahatma Gandhi. So today we are going to learn about the same. Because in examination in the form of match-a-witwe it might be asked. So it would be much better if you are aware about it. So I have brought a list of books, certain books that were written by Mahatma Gandhi. The very first one, that is its autobiography, his autobiography, that is the story of my experiments with truth. 100% this is going to be asked in your examination, because what happens, even if you scroll down or even if you will go through previous year questions, you will come to know that this question is being asked many times. So the same possibility might be arise even in the future. So it will be much good if you are aware about his autobiography's name. So the story of my experiments with truth was written by Mahatma Gandhi. It is an autobiography written by him. Then another book, that is Hind Swaraj, is also written by him. In English, we call it as Indian Home Rule. Then certain compilations of Mahatma Gandhi's writing I have mentioned over here. Let's just go through one by one. A Gandhi's Anthology, that is part 1. Then a Gandhi's Anthology part 2. Then Industry and Agrarian Life and Relations. Key to Health. Then All Men Are Brothers. My God, My Religion, Constructive Program, Its Meaning and Place, Epigrams from Gandhi, Truth is God, this is an important one, Ethical Religion, Nature Cure, because he was also naturalist, so that's why he had written a book on it. Then from Yeravada Mandir, that is Ashram Observances, Panchayat Raj, then Gandhian Rosary, that is Mohan Mala, then Pathway to God, My Views on Education, this is really an important one. Then Prayer, Ram Nam, Selected Letters, the Gita according to Gandhi, Satyagraha in South Africa, Moral Basis of Vegetarianism, Self-Reliant versus Self-Indulgence, The Essence of Hinduism, Teaching of Gita, Words of Gandhi, Law and the Lawyers, then Towards New Education, this is also an important one. Then The Message of Gita, Trusteeship, Way to Communal Harmony, Truth is God, Village Industry, Virat Swaraj, Gandhiji Expects, Discourses on Gita, and Character and Nation Building. So these are certain books that were compilations of Mahatma Gandhi's writing, and even if asked in examination, you must be aware about just the name. You just have to go through the names, so that once you'll go through the names in your mind, consciously or unconsciously, it will be there, and thereby even in examination if it's asked, then you will be that much conscious to answer the question. That's why. Then let's head towards another author's philosophy, or we can say educationist philosophy, श्री औरबिंदो's philosophy to the development of educational thought for social change. आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने श्री औरबिंदो का पिक्चर भी लगाया, सो दैट आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि औरबिंदो कैसे दिखते थे या कैसे थे इन दैट वे. तो हमारे सिलेबस में श्री औरबिंदो की फिलोसॉफी में क्या पढ़ना है. फिलोसॉफी आप देखोगे तो बहुत लंबी है, अलग अलग जॉनर में उन्होंने बातें की है, लेकिन हमारे सिलेबस में डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल थॉट फॉर सोशल चेंज दिया है, तो हमें वो पढ़ना है. सबसे पहले तो मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ श्री औरबिंदो के बारे में. Sri Aurobindo was born on 15th August 1872 and he died on 5th December 1950 and was an Indian philosopher, yogi, guru, politician, writer, poet, nationalist and so on. वो सिर्फ फिलोसोफर ही नहीं थे, योगी गुरु ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल अरीना में भी काम किया है, राइटर भी या ऑथर भी थे बुक्स के,
पोएट भी थे, नेशनलिस्ट भी थे और भी बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है. He joined the Indian movement for independence from British rule and then became a spiritual reformer. It clearly means or refers that during the Indian movement, when British Raj was there, so in the freedom fight for independence from the British rule, he was playing an active role. And along with it, he was also playing spiritual reformer's role. How? Let's just go through that also. Sri Aurobindo studied for the Indian Civil Service at King's College, Cambridge, England. Now see, he got the degree of Indian Civil Service at King's College, which was situated in Cambridge, England at that point of time. He got that degree. After returning to India, when he returned back to India, he took up various civil service works under Maharaja of Princely State of Baroda, that might be called as Barodara right now, and became increasingly involved in nationalist politics in the Indian National Congress. उन्होंने क्या किया, कैम्ब्रिज इंग्लैंड में से इंडियन सिविल सर्विस की उन्होंने डिग्री ली, फिर इंडिया में आए, फिर उन्होंने यहाँ पे अलग अलग टाइप की सिविल सर्विस में भी उन्होंने अपना योगदान दिया. एंड उन्होंने जो उस टाइम पे महाराजा प्रिंसली स्टेट कहा जाता था, अभी बड़ोदरा नाम है बड़ौदा का, तो वहां पे भी उन्होंने काम किया. फिर कहते हैं he was arrested in the aftermath of a number of bomb outrages linked to his organization in a public trial where he faced charges of treason for अलीपुर conspiracy. कुछ कॉन्स्पिरसी हुई थी अलीपुर की, तो उनमें उनका नाम आया था कुछ बॉम्ब ब्लास्ट के केस में, बॉम्ब आउटरेजेस के केस में, और उस टाइम पे उनको जेल भी भेजा गया था, उनको अरेस्ट किया गया था. During his stay in the jail, he had mystical and spiritual experience. जब वो जेल में थे तो उनको अंदर से इनेटली उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए, कुछ आभास हुआ, धार्मिक आभास हुए. आफ्टर विच ही मूव टू पौंडीचेरी, फिर उन्होंने बड़ौदा या वडोदरा छोड़ के पौंडीचेरी गए वो, और वहाँ पे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि पॉलिटिक्स को अभी उनको हमेशा के लिए छोड़ना है एंड वो आध्यात्मिक बन जाएंगे, आध्यात्मिक की राह पे आगे बढ़ेंगे. सो ही डिसाइडेड टू हेड टूवर्ड स्पिरिचुअल वर्क. At Pondicherry, Sri Aurobindo developed a spiritual practice called integral yoga. फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछा जाता है इंटीग्रल योगा का कॉन्सेप्ट किसने दिया या इंटीग्रल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो श्री औरोबिंदो ने दिया है इंटीग्रल योगा, इंटीग्रल एजुकेशन. तो वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात हम कर रहे थे यहाँ पे. तो स्पिरिचुअल वर्क के लिए उन्होंने जब डिसीजन लिया तो पौंडीचेरी जब वो आए तो वहाँ पे उन्होंने इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यानी कि लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज देने की प्रैक्टिस जो है उसके ऊपर सोचा उन्होंने. द सेंट्रल थीम ऑफ हिज विजन, उनका कोई विजन था, वॉज द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इनटू अ डिवाइन लाइफ. उनका एम था कि जिंदगी हमें जो मिली है, ह्यूमन लाइफ जो है, उसको डिवाइन लाइफ में कैसे कन्वर्ट किया जाए. तो वो उनका विजन था और इसी को प्रमोट करने के लिए, लोगों के बीच इसका विचार रखने के लिए उन्होंने फिर आगे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप भी लिया. He believed in a spiritual realization that not only liberated but transformed human nature, enabling a divine life on earth. उन्होंने बोला कि सिर्फ आत्मा को लिबरेशन लाने के लिए या फिर इस जीवन से लिबरेटेड होने के लिए स्पिरिचुअल रियलाइजेशन अगर आप चाहते हो तो वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो आपकी लाइफ को डिवाइन लाइफ बनाता है पूरे अर्थ में. तो इन दैट वे, तो इसीलिए स्पिरिचुअल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है. In 1926, with the help of his spiritual collaborator मीरा अल्फसा, जिनको वो द मदर करके बुलाते थे, he founded the श्री औरोबिंदो आश्रम. यानी कि उनके साथ वो जिस पे बहुत भरोसा करते थे, स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर वो जिनको मानते थे, उनका नाम था मीरा अल्फसा, तो उनको वो द मदर करके बुलाते थे. तो उन्हीं के कोलैबोरेशन में उन्होंने श्री औरोबिंदो आश्रम खोला, बहुत फेमस भी है. श्री औरोबिंदो बिलीव दैट डार्विनिज्म merely describes the phenomena of the evolution of matter into life. कहते हैं कि डार्विन की जो थियरी है वो सिर्फ एक फिनोमिना डिस्क्राइब करती है कि इवोल्यूशन कैसे होता है मैटर का लाइफ के अंदर, बट वो एक्सप्लेन नहीं करती कि क्यों होता है. इट डज नॉट एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट, वाइल ही फाइंड्स लाइफ टू बी ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैटर. जबकि औरोबिंदो कहते हैं
कि लाइफ तो ऑलरेडी मैटर के अंदर ही है। डार्विन थियरी कहता है कि मैटर इवॉल्व होता है लाइफ में, जबकि श्री अरबिंदो कहते हैं ऑलरेडी मैटर के अंदर लाइफ प्रेजेंट ही है, बिकॉज ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मा, सभी भगवान या कुदरत की ही रचना है। ही आर्ग्यूज दैट नेचर विच ही इंटरप्रेट एज डिवाइन, जो वो इंटरप्रेट करते हैं डिवाइन को, तो वो कहते हैं कि वो जो नेचर है या फिर डिवाइन है या फिर आप बोल दो ब्रह्मा है, हैज इवॉल्व लाइफ आउट ऑफ मैटर एंड द माइंड आउट ऑफ लाइफ। तो कहते हैं कि उन्होंने बनाया है लाइफ मैटर के, हैज इवॉल्व लाइफ आउट ऑफ मैटर, मैटर के अंदर से ही लाइफ बनती है एंड माइंड भी लाइफ से ही बनता है। तो डार्विन की थियरी को वो मानते नहीं। ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस ही आर्ग्यूज इज अटेम्प्टिंग टू मैनिफेस्ट टू द लेवल ऑफ सुपर माइंड दैट इवोल्यूशन हैज अ पर्पस। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस से। वो कहते हैं कि उनके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं या फिर ह्यूमन लाइफ की या लिविंग बीइंग की एग्जिस्टेंस है, तो वो कहते हैं उन सभी का मतलब एक ही निकल के मैं कहूँगा कि द लेवल ऑफ सुपर माइंड, सुपर माइंड तक हमें ले जाए, वैसे हमें अटेम्प्ट करना है, वैसे हमें डिवाइन लाइफ जीनी है। दैट इवोल्यूशन हैड अ पर्पस। और कहते हैं हमारा जो इवोल्यूशन है, हम जो यहाँ पे जिंदगी लेके आए हैं, तो उसका कुछ पर्टिकुलर पर्पस है, ऐसे ही इवोल्यूशन कोई भी चीज़ का नहीं होता। ऑरबिंदोज एम्स ऑफ एजुकेशन देख लेते हैं। उन्होंने करिकुलम ट्रांजैक्शन के बारे में बोला है। श्री अरबिंदो प्रिस्क्राइब फ्री एनवायरनमेंट फॉर द चाइल्ड टू डेवलप ऑल हिज लेटेंट फैकल्टीज टू द मैक्सिमम क्रिएटिविटी। कहते हैं फ्री एनवायरनमेंट दो, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दो चिल्ड्रन को, ऐसे बांध के उनको नहीं रखना है, डरा डरा के नहीं रखना है। उससे क्या होगा, आप डरा के रखोगे तो बच्चा खुल के आपको आंसर नहीं दे पाएगा, घबराएगा, तो उसको कोई अगर क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, तो वो टीचर से नहीं पूछ पाएगा, तो वो उसको फ्री एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए फ्री एनवायरनमेंट देना है बच्चों को, एंड ताकि उसकी लेटेंट फैकल्टी, लेटेंट मतलब जितनी भी क्षमता उसके अंदर है वो उभर के बाहर आ पाए एंड मैक्सिमम क्रिएटिविटी वो कर पाए, दिखा पाए। He wished to infuse a new life and spirit into each subject। कहते हैं वो कि हर एक सब्जेक्ट में एक नई लाइफ, नई जान, नई स्पिरिट डालो एंड एक्टिविटीज डालो, थ्रू विच द डेवलपमेंट ऑफ सुपर ह्यूमन बीइंग कुड बिकम पॉसिबल। और ऐसे सब्जेक्ट्स लाओ बच्चों के लिए कि सुपर ह्यूमन बीइंग या सुपर माइंड वो बन पाए। He laid the following principle for curriculum। ये भी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने बोला है कि ये थोड़े प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हैं कि जो कि करिकुलम में अगर आप डालोगे तो बच्चों को हेल्प हो पाएगी। फर्स्ट नंबर, करिकुलम शुड बी सच अ वे विच चाइल्ड फाइंड एज इंटरेस्टिंग। करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि बच्चा इंटरेस्टिंग उसको फाइंड करे। फोकस इज अपॉन मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इट शुड मोटिवेट चिल्ड्रन टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ द होल वर्ल्ड। वो कहते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, होलसम डेवलपमेंट हो, वैसा करिकुलम आप बनाओ जिससे बच्चे करिकुलम को पढ़ने, सिलेबस को पढ़ने में इंटरेस्टिंग महसूस करें, उनका मेंटल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो पाए। फिर कहते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड, इट शुड कंटेन क्रिएटिविटी ऑफ लाइफ एंड कंस्ट्रक्टिव कैपेसिटीज एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू इंटीग्रल एजुकेशन। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटीग्रल एजुकेशन की बात की है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप उठा के देख लो तो उसमें भी पूछे गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। इंटीग्रल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया, तो श्री अरबिंदो ने दिया। श्री अरबिंदो डिस्क्राइब्स करिकुलम फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। अब वो कहते हैं कि इंटीग्रल एजुकेशन देना चाहिए। इंटीग्रल एजुकेशन का फ्रेंड्स आपको मतलब पता है? इंटीग्रल एजुकेशन और कुछ नहीं, लेकिन से फॉर एग्जाम्पल आप अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाते हो बच्चों को, तो मैथमेटिक्स को इस तरीके से पढ़ाओ कि उसमें दूसरे सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी आप उसको एग्जाम्पल के साथ लिंक करो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये एक इक्वेशन है, लॉ है, न्यूटन्स लॉ, ये तो हमें पता है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये साइंस का कॉन्सेप्ट है। अब आपको उसमें स्पीड का अगर आप दो एग्जाम्पल, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल बच्चों को ये कॉन्सेप्ट थर्ड न्यूटन्स लॉ आप पढ़ा रहे हो, तो आप बच्चों को एग्जाम्पल दो कि अगर जितनी व्हीकल की स्पीड आप फास्ट रखोगे तो आपको इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मिलेगा। जैसे बहुत स्पीड में जाओगे तो एक्सीडेंट के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, आपने स्पीड की बात की विच इज न्यूमेरिकल वैल्यू विच डील्स विथ मैथमेटिक्स,
सो साइंस को अगर आपने मैथमेटिक्स के साथ को रिलेट किया तो उसे इंटीग्रल एजुकेशन कहते हैं। वैसे ही आप कॉमर्स को स्टैटिस्टिक्स में लाओ, कॉमर्स में स्टैटिस्टिक्स आता है, मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स आता है, साइंस में आप मैथमेटिक्स लाते हो, इंग्लिश लैंग्वेज जो कि हर एक सब्जेक्ट में आता है, लिटरेचर के फॉर्म में आता है, सेंटेंसेस के फॉर्म में आता है, तो क्या होगा, बच्चा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा लेकिन उसका इंटीग्रल डेवलपमेंट होगा, यानी कि वो सारे सब्जेक्ट्स प्रॉपरली पढ़ पाएगा। तो इसीलिए इंटीग्रल एजुकेशन की बात श्री अरबिंदो ने करी है। आगे देखते हैं, अरबिंदो डिस्क्राइब्स करिकुलम फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। उन्होंने अलग अलग स्टेजेस ऑफ एजुकेशन होते हैं तो उनके लिए कौन सा करिकुलम होना चाहिए उसकी बात की है। जैसे कि फर्स्ट है प्राइमरी स्टेज। तो प्राइमरी या एलिमेंट्री लेवल पे क्या पढ़ाओगे, तो मदर लैंग्वेज में पढ़ाना है, फिर इंग्लिश, फ्रेंच, लिटरेचर, नेशनल हिस्ट्री, आर्ट, पेंटिंग, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज एंड एरिथमेटिक शुड बी टॉट एट प्राइमरी स्टेज। फिर मदर लैंग्वेज की यहाँ पे भी बात की है, इंग्लिश, फ्रेंच, लिटरेचर, एरिथमेटिक, आर्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन, सोशल स्टडीज सेकेंडरी स्टेज पे आ गया। करिकुलम यही है लेकिन उसमें थोड़ा एडिशन किया। फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे हायर स्टडीज पे क्या आना चाहिए, तो इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी आप उनको पढ़ाओ, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन पढ़ाओ, इंग्लिश लिटरेचर, फ्रेंच, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी यूनिवर्सिटी लेवल पे। एंड वोकेशनल अगर एजुकेशन लेते हैं बच्चे तो आर्ट पढ़ाओ, पेंटिंग, फोटोग्राफी पढ़ाओ, स्कल्पचरल, ड्राइंग, टाइप, कॉटेज इंडस्ट्री, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नर्सिंग, ये सारे वोकेशनल कोर्स में आ गए। तो ये ऐसा करिकुलम अगर आप बनाओगे तो होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों की इंटीग्रल डेवलपमेंट पॉसिबल है। थोड़े वर्क्स देख लेते हैं जो कि श्री अरबिंदो ने लिखे हैं या फिर उनके जो कंट्रीब्यूशन है बुक्स है तो वो हम देख लेते हैं। कर्मयोगी, देन रिकॉर्ड्स ऑफ योगा, वैदिक एंड फिलोसॉफिकल स्टडीज, सीक्रेट ऑफ वेदा, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सीक्रेट ऑफ वेदा, हाइम्स ऑफ द मिस्टिक फायर, ईशा उपनिषद, द रेनेसेंस ऑफ इंडिया विद द डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, डिवाइन, द लाइफ डिवाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछी गई है। Synthesis of yoga is important. Human cycle, ideal of human unity, war and self-determination. Future poetry, letters on poetry and art, letters on yoga, the mother, this is important. सावित्री most important. अभी का लेटेस्ट एग्जाम जो गया 2020 का जो अभी था ना एग्जामिनेशन 12 नवंबर को, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। सावित्री जो कि एक लेजेंड सिंबल एपिक पोएम है, वॉज रिटन बाय हुम, तो श्री अरबिंदो ने लिखी है। तो इसी में से एग्जामिनेशन में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि अब की बार आया और पहले भी आए हुए हैं तो आपको क्लैरिटी हो, इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपके लिए ये लिस्ट लेके आई हूँ। महात्मा गांधी का जो मैंने अभी दिखाया आपको, अगर आपको देखना हो तो वापिस से दिखा दूँ। ये जो हमने पढ़ा अभी ये भी इसी में से एग्जाम में आया था इस बार, ये वाला द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इसीलिए। और ये जो हमने अभी पढ़ा वो श्री अरबिंदो का। देखो श्री अरबिंदो के आश्रम में अभी जब ये हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी जी है वो गए थे तो उन्होंने ट्वीट किया था, तो ये मैं एक स्नैपशॉट लेके आई हूँ उसी चीज़ का, इफ़ यू वांट गो थ्रू दैट। देखो उन्होंने ट्वीट क्या किया था, ये अरबिंदो के आश्रम में वो जब गए थे तो उन्होंने ये पिक्चर यहाँ पे डाली थी। 5 दिसंबर को श्री अरबिंदो की पुण्यतिथि है। श्री अरबिंदो को हम जितना पढ़ते हैं उतनी ही गहराई हमें मिलती जाती है। मेरे युवा साथी, श्री अरबिंदो को जितना जानोगे उतना ही अपने आप को जानेंगे, खुद को समृद्ध करेंगे। जीवन की जिस भाव अवस्था में आप हैं, जिन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आप प्रयासरत हैं, उनके बीच आप हमेशा से ही श्री अरबिंदो को एक नई प्रेरणा देते पाएंगे, एक नया रास्ता दिखाते हुए पाएंगे। कितना अच्छा लिखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, उन्होंने मन की बात की थी 29 नवंबर 2020 में, तो उन्होंने तब ये ट्वीट किया था। तो ये अरबिंदो आश्रम जो अभी हमने पढ़ा ना कि अरबिंदो आश्रम वॉज फाउंडेड बाय श्री अरबिंदो, तो वही वो आज भी है, तो उसी के रेलेवेंस में ये पिक मैंने यहाँ पे डाली है सो दैट यू कैन कम टू नो। तो कहने का मतलब है श्री अरबिंदोस के आइडिया, उनकी फिलोसॉफी ना ही सिर्फ उस ज़माने में लेकिन आज के ज़माने में भी उतनी ही मानी जाती है, उतनी ही सराहनीय जाती है एंड लोग उसको फॉलो भी करते हैं, इसलिए हमारे सिलेबस में भी ये डाला गया है।
सो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा है महात्मा गांधी ने जो बुक्स लिखी है, जो इम्पोर्टेंट बुक्स हमारे सिलेबस में पूछी जाती है, वो मैंने आपको लिस्ट दिया, उनके बारे में थोड़ा पढ़ाया। एंड आज हमने ऑरोबिंदो की फिलोसॉफी भी पढ़ ली कि सोसाइटल डेवलपमेंट ऐसे होगा। तो फ्रेंड्स, thank you so much for listening to me very nicely. Do subscribe to my channel, press the like button, share video among your friends as more as possible. Stay tuned for more updates and knowledge. और बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि मैं जितने भी लेसन्स आप ही के लिए लेके आती हूँ तो वो आप तक पहुँच पाए। एंड इस बार JRF हो के रहेगा, राइट? मेहनत करनी है, रिवाइज करना है एंड मेरे साथ आप बने रहिए सो दैट जितना भी मैं नॉलेज शेयर कर पाऊँ वो आप ही को हेल्प रहेगी। थैंक यू सो मच once again. Revise well, study well and happy reading till the next time.